Hello everyone. We are starting with chapter number 10, Cell Cycle and Cell Division. This is the first video of the chapter, class 11th Biology. In this video, we are going to cover the following topics: cell cycle and mitosis. Growth and reproduction. These are the two characteristics of all cells and indeed all living organisms. Means all living organisms, they grow and they reproduce, and all cells also show growth and they also reproduce. Let us start with single cell. Point number 1, cell. They reproduce by division, and when the cell reproduces, it produces two daughter cells. Point number 2. And these two daughter cells, they further grow and further divide. So, point number 4, by growth and division of single cell, new cell population is formed. Or you can say, point number 5, single cell form a structure consisting of millions of cells. तो सिंगल सेल से हमें बहुत सारे सेल्स मिल जा रहे हैं by the division. How a cell divide? Let us see. Start with cell cycle. It is the life period of a cell, जिसमें कोई भी सेल DNA सिंथेसाइज करता है, ग्रो करता है एंड डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स. जो सेल की ग्रोथ है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होती है. साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, बट जो डीएनए का सिंथेसिस है, इट ऑकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज. यू कैन सी द डायग्राम हेयर. 1 पर दिखाया गया है डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, एंड पॉइंट नंबर 2 पर दिखाया गया है डिवीजन ऑफ सेल फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स. ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. कितना टाइम लेता है सेल साइकिल कंप्लीट होने में? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन सेल देखिए, इट टेक्स about 24 hours to complete cell cycle, and in yeast it takes about 90 minutes to complete the cell cycle. Cell cycle has two basic phases, interphase and M phase or mitosis phase. अब डायग्राम देखिए. पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है इंटरफेज एंड 2 लिखा हुआ है एम फेज. जो स्मॉल ग्रीन कलर का ब्लॉक है, इन द आउटर सर्कल it is the M phase or the mitosis phase, and rest of the circle is a interphase. What is interphase or the resting phase? 1 M phase followed by interphase followed by 2 M phase. What do you mean by this? Interphase or the resting phase is a phase between two successive M phases. दो M phases के बीच का टाइम है ये इंटरफेस. इट इंक्लूड्स, क्या होता है इसमें? सेल ग्रो करता है और डीएनए सिंथेसिस होता है, एंड इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. कितना लंबा टाइम है इंटरफेस का? टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम इंटरफेस लेता है. इंटरफेस के 3 फेजेस हैं. इनर सर्कल के डायग्राम में देखिए, G1 फेज और गैप 1 फेज और एंड फेज. सेकेंड S फेज और सिंथेटिक फेज. थर्ड G2 फेज और गैप 2 फेज. These are the 3 phases of interphases. Start with G1 phase or gap 1 phase or end phase. Point number 1, first growth phase है ये. Point number 2, it is the interval between mitosis and DNA replication. See the diagram, capital A and capital C के बीच में capital B है. So, first gap phase is an interval between the mitotic phase, capital A, and the synthesis phase, capital C. क्या क्या events होते हैं इसके अंदर? First A, continuous growth of cell होता है. B, cell becomes metabolically active. बहुत सारी metabolic reactions इसमें start हो जाती हैं होना. Point number 3,
सेल प्रिपेयर करता है मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, and D synthesizes RNA and proteins. So these are the main events which are taking place in G1 phase of interphase. Come to S or synthetic phase. येलो कलर के एरो से दिखाया गया है, सेंटर में प्रेजेंट है. इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस. डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है पर सेल, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता. क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड. पॉइंट नंबर 3, इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, बट सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. क्योंकि सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो उसका डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाता है. देयर इज अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू showing capital A and capital B. Let us see the detail about this diagram here. First diagram देखिए, it is showing a homologous pair of chromosome. दो क्रोमोसोम हैं, homologous pair है. What do you mean by this? They have got the same set of genes located at the same locus. Synthesis phase के अंदर DNA का replication होता है, DNA duplicate होता है, और फर्स्ट क्रोमोसोम जो कैपिटल ए है, इट विल शो 2 क्रोमेटिड्स. कैपिटल ए 2 क्रोमेटिड्स आपको दिखाई देने लगेंगे. एंड स्मॉल ए सेकेंड क्रोमोसोम के भी हमें 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे. सो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हो गया यहां पर ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज. कम टू द थर्ड फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज, एरो से दिखाया गया है. यहां पर क्या क्या होता है, इवेंट्स क्या है यहां पर. दिस इज द सेकेंड ग्रोथ फेज. सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है. सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू रहता है एंड सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस. सो दिस इज द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल. G1 फेज ब्लू कलर के एरो से दिखाया गया है, फॉलोड बाय S फेज जहां डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, G2 फेज एंड फॉलोड बाय द M फेज और द माइटोसिस फेज जिसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. लेट अस स्टार्ट विद M फेज और द माइटोसिस फेज. इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन. यहां पर एक्चुअल सेल डिवाइड होगा और ये टाइम कितना लेता है ह्यूमन सेल साइकिल. इन ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर एंड इट इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. सो दे हैव 2 phases, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन. एग्जाम्पल आपके सामने है हार्ट सेल्स. इनके सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस डैमेज और डेड सेल्स. यहां देखिए फिंगर में कुछ सेल्स डैमेज हो गए हैं और ये सेल्स न्यू सेल्स इनको रिप्लेस कर देगा. सो सम सेल्स दे डिवाइड ओकेजनली टू रिप्लेस डैमेज और डेड सेल्स. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेल्स डिवाइड नहीं होते, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, वो G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं. एरो देखिए बना हुआ है शोइंग अ सर्कल. G0 और गैप 0 फेज कहलाता है. ये क्विसेंट फेज कहलाता है, क्विसेंट स्टेज है जहां पर सेल एग्जिट कर जा रहा है फ्रॉम G1 फेज. सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. ये बहुत मेटाबॉलिकली तो एक्टिव हैं बट दे डू नॉट प्रोलिफरेट, डिवाइड नहीं करेंगे ये. दिस इज द कंप्लीट सेल साइकिल अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. G1 फेज प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है, फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, फॉलोड बाय फाइनल प्रोटीन सिंथेसिस. देन देयर इज एन M phase showing the prophase, metaphase, anaphase and telophase, and there is G0 phase जहां पर सेल एग्जिट कर गए हैं, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद माइटोसिस. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है माइटोसिस के. पॉइंट नंबर 1, इट इज अ सेल डिवीजन ऑकरिंग इन सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? These are the cells which are present in other parts of the organ other than reproductive organs. So
पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है राइट हैंड पर देखिए, सोमैटिक सेल्स दे आर प्रेजेंट इन पार्ट्स अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पॉइंट नंबर 2, it is also called equational division. What do you mean by this equational division? क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है पेरेंट और प्रोजेनी में। यहां डायग्राम में देखिए राइट हैंड साइड पर, पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम हैं तो हर डॉटर सेल के पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में चेंज नहीं होता, दैट्स वाई द नेम गिवन इक्वेशनल डिवीजन। पॉइंट नंबर 3, माइटोसिस जनरली सीन इन डिप्लॉइड सेल्स। व्हाट आर डिप्लॉइड सेल्स? जिन सेल्स में 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, 23 one set, 23 other set. So we are having diploid cells. It also occur in haploid cells of some lower plants and some social insects. Point number 4. It involves major reorganization of all cell components. जितने भी सेल के component हैं वो reorganize होते हैं माइटोसिस के दौरान। The karyokinesis of mitosis has 4 stages. कौन कौन सी 4 stages हैं? न्यूक्लियस के डिवीजन होना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। स्टार्ट विथ प्रोफेज। ये सबसे लंबा फेज है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द माइटोसिस। इट फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। G2 फेज के बाद ये प्रोफेज आता है एंड इन द S and G2 फेज डीएनए किस फॉर्म में होता है? इंटरट्विन्ड होता है, ट्विस्टेड होता है। बट प्रोफेज में आकर क्या होता है देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल जो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में था अनटेंगल्ड हो गया एंड कंडेंस हो जाता है। सेपरेट हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स एक दूसरे से और कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म द माइटोटिक क्रोमोसोम। सीधा डायग्राम, अपर डायग्राम देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं 1 and 2, दे जॉइन टुगेदर बाय सेंट्रोमियर इन द सेंटर। ओके, और क्या होता है इस स्टेज में, प्रोफेज में? सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, नीचे का डायग्राम जो है यहाँ पर सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पर जाने शुरू हो गए हैं और ये क्या बनाते हैं? ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। दोनों तरफ एस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेंट्रोसोम से एस्टर्स निकल रहे हैं अलॉन्ग विद द स्पिंडल फाइबर इन द सेंटर। तो ये तीनों मिलाकर एस्टर्स ऑफ बोथ द सेंट्रोसोम and the spindle fiber, they together form the mitotic apparatus. What else happens in the prophase? At the end of prophase, what happens? Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है at the end of prophase. Now start with the metaphase. पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है। तो क्रोमोसोम कहां पर आ गए? हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में फैल गए हैं सारे क्रोमोसोम। पॉइंट नंबर 2, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस्ड, बिल्कुल कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और बहुत इजीली माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अब 2-2 क्रोमेटिड्स हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर देयर इन ईच क्रोमोसोम। पॉइंट नंबर 3, क्रोमोसोम कम टू लाई एट द इक्वेटर। देखिए डायग्राम देखिए, येलो कलर का डायग्राम में देखिए क्लियरली दिखाया गया है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं एंड दिस नाउ इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। The spindle fiber from both poles are connected to chromatids. कैसे कनेक्टेड होती है क्रोमेटिड से? By their kinetochores. क्रोमेटिड्स के पास जो काइनेटोकोर्स हैं, जो सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में टू द स्पिंडल फाइबर। यहाँ डायग्राम देखिए, काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर में क्रोमोसोम के और ये हेल्प कर रहा है क्रोमोसोम को अटैच होने में टू द स्पिंडल फाइबर। एनाफेज स्टेज।
इट इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस, सबसे छोटा फेज होता है। और सेंट्रोमियर इसमें अब डिवाइड हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमेटिड्स। हर क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं अब वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो 4 क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ चले जाएंगे, 4 क्रोमेटिड्स दूसरे पोल की तरफ आ जाएंगे। क्लियर? सो क्रोमेटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द ऑपोजिट पोल्स इन एनाफेज स्टेज। टीलोफेज। पॉइंट नंबर 1, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए हैं दोनों पोल्स के ऊपर और अनकॉइल हो जाते हैं एंड फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर्स अगेन। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाता है अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स और अब एक सेल के पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? कम टू नेक्स्ट स्टेज, साइटोकाइनेसिस। यहां पर अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। डायग्राम देखिए, ऊपर का जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। अब बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ और हमको मिल गया 2 डॉटर सेल्स having 1 nucleus in each daughter cell. This is the division of cytoplasm and it starts when telophase is in progress. Animal cell के अंदर cytokinesis कैसे होता है? Here a cleavage furrow is appeared in the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लीवेज बन जाता है एक, और जो ग्रेजुअली डीपन हो जाता है और सेंटर में जाकर ज्वाइन हो जाता है। It gradually deepens and join in the center and divide the cytoplasm into 2. अब हमको एंड में जाकर 2 डॉटर सेल्स मिल गए हैं। क्लियर है? क्लीवेज दिखाया गया है डायग्राम में, देख लीजिए। और क्लीवेज धीरे धीरे सेंटर में जाकर ज्वाइन हो गया और 2 डॉटर सेल्स हमको मिल गए हैं। दिस इज हाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल। बट इन प्लांट सेल व्हाट हैपन? इन प्लांट सेल द वेसिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। डायग्राम नंबर 1 पे देखिए, वेसिकल्स जो हैं गोल्गी बॉडी से इक्वेटर पर आकर एक्यूमुलेट हो गए हैं। इट ग्रोज आउटवर्ड, बाहर की तरफ ग्रो करेंगे एंड मीट्स द लेटरल वॉल्स, और साइड की वॉल से ज्वाइन कर जाएंगे। दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेल प्लेट। तो जो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होता है, इट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. It separates the two daughter cells. Later, the cell plate becomes the middle lamella. During cytokinesis in plant cell, organelles like mitochondria and plastids ये भी distribute हो जाते हैं among the daughter cells. And in some organism, जहां पर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, वहां क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, सिंसीशियम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. So what are the different stages of mitosis? These are the overall steps of mitosis: prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by the cytokinesis. Significance of mitosis क्या है? Point number 1, it produces diploid daughter cells with identical genome. जो daughter cells मिलते हैं उनके जो जीनोम है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों डॉटर सेल्स में सेम टाइप ऑफ जीनोम इज प्रेजेंट. पॉइंट नंबर 2, क्रोमोसोम का नंबर रिटेन रहता है. इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमैटिक सेल्स. जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं सब में एक जैसा क्रोमोसोम का नंबर रहता है. पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये. एग्जाम्पल है माइटोसिस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में होता है. इसकी वजह से प्लांट जो हैं दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. पॉइंट नंबर 4, माइटोसिस रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो
न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की जो रेशो है वो रिस्टोर करने में हेल्प करती है जो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ. And lastly, it helps in the cell repair and replacement. Example, cells of upper layer of epidermis, lining of the gut and blood cells. They get repaired and replaced by the process of mitosis. So that's all about the mitosis. Do the test which is given in the description box. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Thank you. Thank you so much.